Alright guys, so here we are again for the recording of lecture. In the Perl programming, we will be discussing about the arrays, right? So arrays, we have already understood that we can declare an array in Perl programming by declaring it at the rate symbol, right? So now let's understand here what is going on in Python Perl programming. Let's see here that to define an array, we need to start it by at the rate symbol. At the rate ages is equal to 25, 30, 40 are the scalar quantities in an array. Of which type? Numeric type, right? Then we are having at the rate names is equals to string type of array here, right? So both are declared with the same symbol at the rate at the rate. Now to access any individual value of this particular array, what we are required to define, we are required to tell this array with the symbol of forward slash that we are going to access the value at zeroth index and we are able to fetch out the value at zeroth index, right? So this is how we require to understand here. Now array creation is as simple as we have seen. Now we have already understood we understood a concept which says that what exactly the array is. According to our old definition, array is the homogeneous collection of data, right? So in an array, if you are having integer, then all its values should be of integer type. Float, then it should all have the float type values. Or if you have say string character, then you should have the character kind of data type, right? But now we are in the Perl, we are having a little change in this definition, and instead of simply keeping it as the homogeneous array, we are making it as heterogeneous array, right? So array variables are prefixed with the array sign and populated using parenthesis or QW operator, right? So there are two ways to declare an array. That is what the one is the round parenthesis in which we can define the heterogeneous kind of data. Another way is the QW, QW slash double slash. One is the starting slash and another one is the ending slash. So QW is again the symbol with which you can create an array, right? It will return the list of strings on itself, right? Multi-array, call it as. Then what happens here? So this is in this what happens in this the white spaces are simply allowed, right? And if you talk about this particular array, how this data has been working, so you need to understand that in this particular array there are four elements available, right? And what it is saying, the first element is this, and the last element is the array, right? So if you need to access something in this array, then the ways are as simple as these ones itself, right? So this is what it how it works. So there are two ways to create an array. One is the traditional one in which you are having round parenthesis and you can access the very elements of that particular variable. Another one is with the help of QW double slash, which helps you out in reading array at a stretch, right? So now understood that how the things are being done here. Now what is the another way of what we talk about the strings then at the rate days QW of double slash starting from Monday, Tuesday, dot, then slash by semi followed by the semicolon, that is the Sunday, right? So what does it does? It will take how many elements it takes? You understand this thing? You didn't understand here. What I really want to tell you that it will take all the variables uh, within the range from Monday to Sunday at a stretch, right? So array of zero will access what Monday, and array of six will fetch out the value of the last variable in that array, that is known as Sunday, right? Then accessing array elements. This is the same thing as we have done here, right? We are having a QW array in which we are having some values in it, and then we are able to fetch out some data from it, right? So this is how it's being done. Now this array is again having a concept of range, right? I don't think it will follow it. I don't think it will follow it, but just let's try to execute it, right? No, nothing will happen. Okay, so guys, try to understand. And if we try to talk about the arrays, then a range function will work. I'll show you in a minute or so. But
prior to that, need to understand that how this array will work. So it won't work in that particular way, which I am telling about. So for this, what we require here, we need to mention all the number of variables in that particular array, and you are able to fetch out each and every information from it, right? So again, let's try to understand that what it's trying to say. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. So what will be the indexing position of Sunday? Right? It can have two index position: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, right? So days of 6 is Sunday, as well as days of -1 is Sunday. Okay, guys, you need to understand this thing. Now, if you need to access Monday, then there are two ways to access Monday also: days of 0 as followed by the days of -7. This is again a array in itself. Now, this is what the accessing array elements and sequential numbers are there. Now the range function plays its role here, right, guys? I explain it to you with the help of this specific example here. Now, leave this and we are moving towards this particular thing, right? Now, here comes the, like in Python programming, what happened? If I need to declare something for I in range 0 to 9, right, comma 1. So what does this particular uh, loop is trying to say? That I'm having a variable named I, and it is inside the range, in between the range of starting from 0, moving up to what? Eighth variable. It wouldn't include the ninth variable in it, right? And the third symbol, which has been number, which has been given here, is indicating that every variable is increasing itself by one, right? So the initial I, the initial value of I is 0, and again it gets started by itself and adding 1 in it. So next value of this I will be 1. So 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, guys. So in total, 9 variables will be there in this particular variable named I. And if I'm storing it in array, that is an entirely different story. I'm not going to discuss it here, but let's, for the by the time, let's try to understand it here. Okay. Now to use any range function in for, what are we required to do? We know that what is the range, right? So I want it in between, not in between, starting from 1 ending to 10. Okay, guys. So this is how the dot dot is concept is being shown. So these dot dots are showing the range. All right. Now this is from 10 to 20. Now this is from A to Z. This means what? Starting from A ending up to Z. So what are these? These are being predefined things in the Python programming, and you can access it like this, right? Now, let us suppose I increase this particular range by 50. Then what will happen? Ooh, so you have a huge amount of data here. Let's say starting from 1, ending it up to 15. Okay, guys? So this is how the programming is being working on. This is how the facility is being provided in Perl programming, right? So this is what the range function is here. Okay, so these dot dot, see, whatever I'm saying, I'm proving it here. Here the double dot is called the range operator. It will yield result into this side. Now what is the next thing? Whenever I'm using an array, I am required to check the size of that array, right? So what is the size of that array? You simply need to print the size scalar at the rate array slash n. Okay, so let's just copy this particular syntax and print it here. Sorry, this was my program was here. Print it here. I want to check scalar array, right? So let's say my array is of where underscore 10. Okay, so let's see what is size it is indicating here. Does it indicating anything here? No. One, two, three. Okay, let's see here. Okay, okay. I insert one and I want to give slash v doesn't work here, right? Hmm. Okay, second it is understood here that if I'm trying to check the size of 1 to 50 variables, then size of this particular scalar variable is a 50. Okay, guys. Now, if I wish to check the size of what variable underscore abc, that is how many alphabets are there in this abc. So let's execute this program.
and see how many alphabets are there in the ABC list. That is from 1 to 26. So starting from 0 till 24 will be the indexing position, and how number n numbers of variables are stored in that particular array will be of size 26. Starting from A up to Z, we all know how many numbers are there available. Okay. So the way you wish to increase your list, it's entirely your choice. So this is the variable through, or this is the way through which we can check the size of any particular array. Now, what are the certain ways in which we can add an array or remove an array, and what are the different ways in which you wish to work in an array? So here are the types and description. Push @array comma list. Pushes the values of list onto the end of array. Okay. Pop if you want to pop out some variable from it. Then shift if you want to shift an array by one value. Suppose you want to reduce the size of array by one. Then what is the way you can do, or upshift if you wish to move into the different ways, so you can do this kind of things here, right? So let's understand this entire concept by a program here. Now what does this program is trying to tell me? First of all, let's understand it. Let's leave this particular place, otherwise it will have its impact here. Okay, so let's, meanwhile program is being compiled here. Let's see what it is trying to say. Create a simple array. We have created a simple array in which we are talking about the type of coins. ठीक है, तो कॉइन के जो डिनोमिनेशंस होते हैं ना, उनको जैसे यूएस में हम जाकर के बात करते हैं, तो उनके डिनोमिनेशंस कैसे होते हैं बेटे? उसको बोलते हैं हम लोग क्वार्टर, डाइम, निकल, ठीक है, देन पेनी, है ना? जैसे हमारे यहाँ पर कैसे चलता था पहले, रुपया है तो पैसा, पैसा की दमड़ी, दमड़ी के बाद में वो अपना जिससे हम लोग पासे खेलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, वो भी एक कुछ होता है। तो दीज आर व्हाट द डिनोमिनेशन। इंडिया में तो रुपया ही बचा है, तो इसमें पैसे का कंसेप्ट नहीं होता है, लेकिन यूएस में, जापान में या ब्रिटेन में वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ कंसेप्ट कि अगर डॉलर है तो उसको क्वार्टर में आप ब्रेक कर सकते हो, डाइम में कर सकते हो, निकल में, पेनी में। तो इस तरीके से हम उसको बाइफरकेट कर लेते हैं, राइट? इन जापान में हम उसको येन होता है तो येन के भी बाय डिनोमिनेशन होते हैं, एंड लाइक सो ऑन। सो एक मेरा एरे है इस टाइप का, क्वार्टर, डाइम और निकल, इसमें तीन वेरिएबल्स ऑलरेडी डले हुए हैं। अब मैंने इसको प्रिंट कराया, तो क्या है ये चीज़? कॉइन्स। तो कॉइन्स की कॉइन्स यहाँ पर प्रिंट होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसके बाद में मुझे क्या करना है? क्वेश्चन है कि इस पर्टिकुलर के अंदर, यानी क्वार्टर, डाइम, निकल के बाद में मुझे क्या ऐड करना है? पेनी भी ऐड करना है, ठीक है। तो मैंने इसके अंदर पेनी ऐड कर दिया। फिर मैं क्या करूँगी? ऐड वन एलिमेंट, एंड के अंदर, एरे के एंड में जाकर के ये पेनी ऐड होगा, ठीक है। यानी क्वार्टर, डाइम, निकल के बाद में क्या आ जाएगा? पेनी आ जाएगा। नाउ अब क्या बोलता है? अनशिफ्ट। अनशिफ्ट के अंदर, कॉइन्स के अंदर क्या डालना है? मुझे डॉलर डालना है। तो अनशिफ्ट क्या करता है? ऐड वन एलिमेंट एट द बिगिनिंग ऑफ द एरे। तो चूंकि डॉलर सबसे बड़ा होता है, तो डॉलर के बाद में उसका क्वार्टर होता है, क्वार्टर के बाद में उसका टाइम होता है, टाइम के बाद में उसका निकल होता है, निकल के बाद में उसकी पेनी होती है। सो दिस इज हाउ द थिंग्स आर बीन गोइंग। नाउ इफ आई वांट टू रिमूव वन एलिमेंट, तो कहाँ से रिमूव होगा वो एलिमेंट? कहाँ से रिमूव होगा? लास्ट से रिमूव होगा, ठीक है। सो अगर मेरे पास में अभी एक लिस्ट क्या बन चुकी थी यहाँ पर, डॉलर, क्वार्टर, डाइम, निकल और पेनी। पेनी को मैंने कहाँ पे रखा था? सबसे आखिर में। तो लास्ट का जो पेनी है वो निकल करके यहाँ पर आ जाएगा। सिमिलरली शिफ्ट करना है, तो शिफ्ट करने में क्या हो जाएगा? वन एलिमेंट फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ एरे। बिगिनिंग क्या हुई थी उस पर्टिकुलर एरे की? डॉलर से हुई थी, तो डॉलर जो है फिर से निकल जाएगा, है ना? तो मेरे पास में जो है, जो पुरानी लिस्ट थी वो वापस आ जाएगी, क्वार्टर, डाइम और निकल जाएगा, ठीक है। तो अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो देखो, क्वार्टर, निकल, डाइम, क्वार्टर, डाइम और निकल था पूरी मेरी एरे लिस्ट में। मैंने क्या किया? पुश किया। तो पुश करने पर क्या हो गया? सबसे आखिरी में डेटा जाकर के ऐड हुआ। कौन सा डेटा ऐड हो गया? पेनी। फिर मैंने क्या किया था? अपशिफ्ट किया था। अपशिफ्ट यानी कि उसकी इनिशियल पोजीशन पे कोई डेटा डालना चाहिए, तो यहाँ पर मुझे डॉलर आ गया था। फिर मैंने क्या किया? पॉप किया एक एलिमेंट को। पॉप करने पर क्या हुआ? जो लास्ट का एलिमेंट था पेनी, वो निकल गया। फिर मैंने क्या किया? शिफ्ट किया। तो शिफ्ट में क्या हुआ? फर्स्ट एलिमेंट जो था वो निकल गया। तो मुझे मेरी डॉलर निकल गया, तो मेरे को मेरी ओरिजिनल जो लिंक थी वो वापस से मिल गई लिस्ट, यहाँ पर क्वार्टर, डायमंड निकल की, ठीक है। तो दिस इज व्हाट दिस प्रोग्राम इज ट्राइंग टू टॉक अबाउट। आई एम लीविंग फ्रॉम हियर, देन अगेन मूविंग हियर इन दिस स्लाइसिंग एरे एलिमेंट्स। स्लाइसिंग एरे एलिमेंट्स वही चीज़ होती है जो हम लोगों ने पहले देखी हुई थी, कि हम लोग इस पर्टिकुलर एरे को स्लाइस करना चाहते हैं।
कि जिस करंट डेटा के ऊपर हम काम करना चाहते हैं सिर्फ उतनी की उतनी स्लाइस हम उठा करके उसके ऊपर काम करें। ठीक है, तो क्या करता है स्लाइसिंग एरे एलिमेंट, क्या बोलते हैं यहाँ पर, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। नाउ आई एम हैविंग डेज, राइट, तो एट द रेट डेज, और मैंने एक एरे यहाँ पर बनाया है वीक डेज का। ठीक है, अब उसमें से मैं क्या चाहती हूँ, 3, 4 और 5 के स्लाइस का एक छोटा सा एरे बनाती हूँ। तो वीक डेज 3, 4 और 5, तो 3, 4 और 5 के अंदर क्या आना चाहिए, 0, 1, 2, 3, 3, 4 एंड 5, तो थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे आ जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसका लाइव डेमो दिखाने की आपको ज़रूरत है यहाँ पर। अब मैंने क्या बोला, किसी एक रेंज के अंदर चाहिए, 3 से 5 तक का चाहिए। तो मैंने आपको ये बताया था जो पाइथन की रेंज होती है उसमें क्या होता है बेटा, पाइथन की रेंज के अंदर जो लास्ट वाला एलिमेंट होता है वो इंक्लूडेड नहीं होता है, लेकिन पर्ल की जो रेंज होती है उसमें लास्ट वाला एलिमेंट जो होता है वो इंक्लूड होता है। ठीक है, तो इसका एक रन प्रोग्राम देख लो आप यहाँ पर, आपको समझ में भी आ जाएगा। तो डेज के अंदर क्या डाल दिया, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। ठीक है, then weekdays के अंदर what I'm trying to do, I am trying to access the elements starting from 3 ending up to 5. So starting from 3, 1, 0, 1, 2, 3, starting from Thursday, 4th is Friday and 5th is Saturday. तो मेरे पास में यहाँ पर जो एग्जीक्यूशन के टाइम पे आने चाहिए कम से कम 3 एलिमेंट्स आने चाहिए, और वो यहाँ पर आ गए हैं। ठीक है, सो इस तरीके से हम लोग समझेंगे। फिर क्या होता है यहाँ पर, रिप्लेसिंग दी एरे एलिमेंट्स। क्या आपको रिप्लेस करना है, क्योंकि एरेज की जब आप बात करते हो तो इसमें ये सारे कंसेप्ट आते ही आते हैं, है ना। अच्छा, इसके अंदर भी वो कंसेप्ट चलेगा, -1 अगर डाल दिया, -2 कम कोलन -1 डाल दिया तो मेरी रेंज क्या आ जाएगी, सॉर्ट ऑफ। तो वो सारे के सारे कंसेप्ट तो इसके अंदर भी चलेंगे ही चलेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं किसके ऊपर, रिप्लेसिंग दी एरे एलिमेंट्स के अंदर। रिप्लेसिंग द एरे एलिमेंट्स के अंदर हम लोगों को एक फंक्शन इंट्रोड्यूस किया जाता है जिसको बोलते हैं स्प्लाइस, SPLICE। राइट, तो अब ये स्प्लाइस क्या कर रहा है इसको समझते हैं। स्प्लाइस एट द रेट एरे ऑफसेट लेंथ कॉमा लिस्ट। ठीक है, क्या समझ रहे हैं, अब हम यहाँ पर इसको समझते हैं। The function will remove the elements of @array by offset and length and replaces them with the list if specified। अगर मैंने कोई लिस्ट स्पेसिफाई करी है तो उसके अंदर वो जो है वो एलिमेंट्स आ जाएंगे, नहीं तो फिर खाली रही लिस्ट, है ना, उसमें तो कुछ और भी नहीं सकता है। तो अभी इसको कैसे किया स्प्लाइस को, मैंने ये समझा। स्प्लाइस एट द रेट एरे, इस एरे के अंदर कोई ओरिजिनल वैल्यू स्टोर है, सपोज हम मान के चलते हैं 0 से 10 तक की कोई वेरिएबल इसके अंदर स्टोर है। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, ऑफसेट करना है। ऑफसेट यानी कि उसमें से मुझे डेटा जो है भाई हटा देना। ठीक है, पहली फुर्सत में हटा देना है। तो अब हटाना है तो कहाँ तक की लेंथ का हटाना है, ठीक है, कहाँ तक की लेंथ का हटाना है, उस लेंथ को मैं यहाँ पर दे दूंगी। और अगर मेरे पास में कोई नई लिस्ट है ना, कोई नई लिस्ट है, उस डेटा को उसके अंदर एंटर कर दूंगी। तो अब यहाँ पर हम इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो मेरे पास में एक नंबर काइंड ऑफ एरे है। ठीक है, उस नंबर काइंड ऑफ एरे के अंदर मैं क्या कर रही हूँ, मेरे पास में डेटा ऑलरेडी स्टोर है 1 to 20 तक का। ठीक है, 1 to 20 तक का डेटा स्टोर है, तो मैं बिफोर यहाँ पर इसको प्रिंट करा दी। फिर मैंने स्प्लाइस लगाया। स्प्लाइस करने के बाद में क्या करते हैं हम लोग, उस एरे का नाम देते हैं जिसके अंदर हमको स्प्लाइस लगाना है, यानी कि जिसको स्प्लिट अपार्ट करना है। अब कहाँ से करना है ऑफसेट, 5 वाली वैल्यू से करना है। ठीक है, लेंथ क्या देनी है उसकी, 5 देनी है। अब वो जो 5 वाली लेंथ आपने दे दी, उस 5 के अंदर एलिमेंट कहाँ से आने चाहिए, तो उस एलिमेंट की मैंने यहाँ पर रेंज दे दी, 21 से 25 तक के एरेज के वेरिएबल्स के अंदर आ जाना चाहिए। ठीक है, so now what is trying to do, I am having before value, so 1 to 20 I am having all the data here, right। मैं डेमो लगा देती हूँ, फिर आपको समझा देती हूँ। देन क्या किया मैंने, 5 का ऑफसेट फिक्स किया, तो 5 का ऑफसेट फिक्स किया। ठीक है, जो नया वेरिएबल आ रहा है उसका भी लेंथ मुझे क्या लेना है, 5 का लेना है। ठीक है, तो मैंने 1 2 3 4 5 ले लिया। ओके, और जो मेरी आगे की लिस्ट थी वो है यहाँ से शिफ्ट होगी। ठीक है, कहाँ से शिफ्ट होगी, यहाँ से शिफ्ट होगी। तो अब इसके अंदर बीच के कौन से एलिमेंट चलेगा, यहाँ से चलेगा 6 7 8 9 10। ठीक है, ये 5 एलिमेंट जो है इसमें से चले गए। ठीक है, देन फिर क्या होता है, वहां पर उनको रिप्लेस करना है किसी से। तो रिप्लेस मैंने क्या कर दिया, वो जो रेंज डाल दी यहाँ पे 21 से 25 डाल दी, 21 से 25 डाल दी। तो वो रेंज के एलिमेंट्स जो है वो इसके अंदर यहाँ पर आ गए। अब इसका हम लोग देखते हैं एक बार डेमो, है ना। तो डेमो समझा आपको, एग्जीक्यूशन के टाइम पर आना चाहिए यहाँ पर। तो बिल्कुल ठीक है, ये 1 से 8 तक आ गया। अब समझते हैं, अब हम समझते हैं कि मैं जो है इस पर्टिकुलर रेंज को जो है बड़ा कर देती हूँ। कितना बड़ा कर देती हूँ, 100 तक कार्य कर देती हूँ। ठीक है,
एट द रेट नंबर पर मुझे क्या करना है, स्लाइस लगाया, 5 से लगाया। अब मुझे क्या करना है यहाँ पर, हम क्या कर सकते हैं, ए से जेड तक, ठीक है। अब इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करके देखिए क्या आंसर आता है। यस, नाउ कहानी में ट्विस्ट जो है, नाउ इट वर्क्स हियर, राइट। आई एम हैविंग अ रेंज 1 to 50। नाउ व्हाट आई वांट टू डू, किसके बाद से लगाना है, 5 के बाद से, ठीक है। कहाँ तक का लगा देना है, पूरे 26 वेरिएबल तक का, ठीक है। तो मेरे पास में यहाँ से देखो 5 के बाद में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो कहाँ तक के चले गए, सारे के सारे एलिमेंट, ए से लेकर के ये जेड तक के वेरिएबल्स पूरे के पूरे 26 एलिमेंट्स जो हैं वो कहाँ चले गए, फिफ्थ पर्टिकुलर पोजीशन के बाद से स्टोर हो गए या अपडेट हो गए, ठीक है। अब क्या होगा, आपकी रेंज अभी भी कहाँ तक जा रही थी, 100 तक की जा रही थी। तो इसमें हम लोगों ने क्या किया, जो रेंज है मेरी वापस से 100 तक की जा रही थी, अब लेकिन वो कहाँ तक की जाएगी, इसे चेक करते हैं, वो चलेगी 100 तक। कि मैंने क्या कर दिया, इसको पूरे को अपग्रेड कर दिया, ठीक है। मैंने क्या किया, इस पूरे लिस्ट को अपग्रेड कर दिया, ठीक है। So this is how my basic program is working here, ठीक है। So this function is known as slicer। Now अब क्या होगा, कोई स्ट्रिंग है, मुझे उसको किसमें ट्रांसफर करना है, एरेज के अंदर, ट्रांसफॉर्म स्ट्रिंग्स टू एरे के अंदर करना है। तो उसके लिए मेरे पास में क्या पैटर्न होता है, उसके लिए मेरे पास में पैटर्न होता है जिसको हम बोलते हैं स्प्लिट। हम स्प्लिट कर देंगे पैटर्न। तो क्या है मेरे पास पैटर्न, पैटर्न नाम का एक पर्टिकुलर जो भी पैटर्न है उसको लेंगे, ठीक है। फिर उसको क्या करेंगे, एक्सप्रेशन के अंदर लेंगे और फिर उसका लिमिट दे देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो ये किसके थ्रू होगा, स्प्लिट के अंदर होगा। अब मेरे पास दो वेरिएबल्स हैं, ठीक है। तो मैंने क्या डाला उस वेरिएबल के अंदर, वेरिएबल स्ट्रिंग रेन ड्रॉप्स ऑन रोजेस एंड विस्कर्स ऑन किटन, ठीक है। देन इसके अंदर कुछ नाम डालेंगे, लैरी, डेविड, रॉजर, केन, माइकल और टॉम, ठीक है। मैंने क्या किया, इस लिस्ट को कैसे स्प्लिट करना है, किस पैटर्न से स्प्लिट करना है वो देखा, ठीक है। स्प्लिट किया, किस पैटर्न से कर दिया, माइनस के पैटर्न से कर दिया। देन क्या डाला, डॉलर के ऊपर वेरिएबल अंडरस्कोर स्ट्रिंग, ये डाल दिया। अब क्या करना है, इसको स्प्लिट करते टाइम इसको किससे कर दिया मैंने, कॉमा से कर दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा यहाँ पर, रिजल्ट ये देखते हैं, ठीक है। काहे क्या चीज आ रही थी यहाँ पर, बीच में डैश आ रहा था, ये डैश पूरी तरह से जो है हटने शुरू हो जाएगा, ठीक है। देन यहाँ पर क्या हो रहा था, कॉमा लगा के डेटा आ रहा था, ठीक है। तो कॉमा लगा करके जो डेटा था उसको एक्सेस करने की मैंने कोशिश करी। तो अब क्या होगा, मैंने यहाँ पर जो प्रिंट करना चाहा, प्रिंट के अंदर कौन से पर्टिकुलर एलिमेंट को लिया वो आ जाएगा। तो मैंने इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग को क्या है, एक पर्टिकुलर लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया सबसे पहले तो। अब लिस्ट में आ गया तो कैसे से ये यहाँ पे डैश से सेपरेट हो रहे थे, उन डैशेस को मैंने हटा दिया। अब मुझे क्या चाहिए, थर्ड नंबर का डेटा, तो 0 1 2 3। तो क्या प्रिंट होगा यहाँ पर, रोसेस। जो ये वाली लिस्ट है उसको किससे किया, 4 से। तो 0 1 2 3 4, तो माइकल का आंसर यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू आर चेंजिंग सम स्ट्रिंग्स टू एरेज, ठीक है। वो स्ट्रिंग है तो स्प्लिट लगा करके आपने उसको एरे लिस्ट के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। नॉट ट्रांसफॉर्म एरेज टू स्ट्रिंग, तो अब आपको इसके अंदर बाबा किसी किस्म का ज्वाइन लगाना पड़ेगा। जब आपने स्प्लिट किया किस चीज़ को, तो ज्वाइन करना है। ज्वाइन कर दो, अगर आप किससे ज्वाइन कराना चाहते हो उस चीज़ को, आप उस चीज़ को ज्वाइन कराना चाहते हो कहीं डैश या कॉमा से। इसका लाइव डेमो देखते हैं, 1 सेकंड के अंदर आंसर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले तो मैंने स्प्लिट कर दिया उसको किससे, डैश से, और इसको डॉट से। इन पूरी लिस्ट को मैंने स्प्लिट कर दिया। तो स्प्लिट करने के बाद में क्या रिजल्ट आया, देख लेते हैं, ठीक है। और ये प्रिंट इधर पे दिया है मैंने, ये प्रिंट हम यहाँ पर भी दे देते हैं ताकि मुझे पता चले कि स्प्लिट होने के बाद में क्या लिस्ट थी मेरी, और ज्वाइन होने के बाद में क्या थी मेरी लिस्ट। ऐसा क्यों होगा, ये था यहाँ पर, मैंने इस लिस्ट को स्प्लिट किया और प्रिंट करा। अच्छा, स्प्लिट के बाद में क्या होता है, मैं एक बार में एक ही वेरिएबल एक्सेस कर पा रही हूँ, ठीक है। लेकिन ज्वाइन के बाद में मेरे को एक कंबाइंड लिस्ट करके मिलती है, इसीलिए मैं इसका हर एक एलिमेंट नहीं एक्सेस कर पा रही हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, स्ट्रिंग 1 ऑफ 3 डाल देती हूँ, और यहाँ पे स्ट्रिंग 2 ऑफ कितने हैं, 0 1 2 3 0 1 2 3। तो केन को एक्सेस करते हैं, 3 पर केन आना चाहिए, केन के बजाय माइकल 2 को एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो डेविड 0 1 2 रॉजर आ जाएगा,
पड़ेगा डॉलर लिया, लिया लीगल, ठीक है, ज्वाइन इट बाय, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर तो प्रिंट हो ही जाएगा, तो कैसी दिक्कत नहीं आ रही, इसको सिर्फ एक बार कंपाइल करके और मुझे चेक करना पड़ेगा, नो इश्यूज। चलो, तो इतना ज़्यादा इसमें हम दिमाग नहीं लगाएंगे। अब क्या हो जाता है, मुझे सॉर्ट करना है किसी array को, ठीक है, तो सॉर्ट करने का क्या हो जाएगा, सॉर्ट सब रूटीन और लिस्ट, ठीक है, तो क्या कर देना है मुझे यहाँ पर, मेरे पास में एक लिस्ट है, एरे है, क्या दिया हुआ है, पिज्जा स्टिक चिकन बर्गर, ठीक है, इसको मुझे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सॉर्ट करना है, तो सॉर्ट एट द रेट फूड्स के बेसिस पर मैंने इसके फंक्शन का नाम दे दिया, तो क्या शुरू हो जाएगा, BCES, तो आ जाएगा बर्गर चिकन पिज्जा एंड स्टीक, ठीक है, तो आपका ये जो एरे है स्टोर हो गया, यहाँ पर हमने सॉर्टेड हो गया। Now we need to see here a special variable. What does this special variable is talking about? Special variable which is written as dollar or opening rectangular braces. So it is showing the variable is a scalar containing the fixed first index of all the arrays. ठीक है, तो सिंपल चीज़ है, कोई लोचा नहीं है इसमें। क्या बोल रहा है यहाँ पर, fruits of वन, तो वो जो फर्स्ट पर्टिकुलर इंडेक्स है उसको बता देगा, सेकेंड इंडेक्स है तो उसको बता देगा, कोई झंझट। अब जब मैंने किसी एरे को सॉर्ट किया था, अब मैंने स्प्लिट भी करके देखा, अब मुझे क्या करना है, दो एरेज को मर्ज करना है, मर्ज करने का तरीका क्या होगा बेटा, 1 3 4 5 6, ठीक है, मुझे सिंपली क्या कर देना है, मर्ज करना है, तो आप ले लो यहाँ पर दो एरेज, एक एरे के अंदर ऑड नंबर के एलिमेंट्स डाल दो, एक के अंदर इवन नंबर के डाल दो, तो नंबर्स के बाद में एक फंक्शन लगा दो कि यहाँ पर मुझे दोनों एरेज को कॉमा से सेपरेट करके दोनों डाल दो, तो मेरे पास में लिस्ट आ जाएगी। यहाँ पर डेमो देखते हैं किस तरह देखना हो, ज़्यादा झंझट तो नहीं है इसमें समझने में। तो यहाँ पर गए हम लोग और हमने यहाँ पर जाकर के क्या किया, इसका डेमो देख लेते हैं। तो पूरी लिस्ट में क्या आ जाना चाहिए, ऑड में आ जाते हैं आपके 1 3 5 और इवन में थे आपके 2 4 6, तो पूरा मेरे पास में ओवरऑल आंसर क्या आ जाना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो 1 3 5 2 4 6, तो चूंकि मैंने इसको किसी ऑर्डर में नहीं डाला है अभी, तो 1 3 5 2 4 6 के बाद में वो अपडेट हो गई लिस्ट। अगर किसी ऑर्डर में डालना होता है, सॉर्ट करना होता है, तो मैं इसके अंदर सॉर्ट का एक फंक्शन दे दूँगी, सॉर्टेड हो जाएगा, ठीक है। अब किसी भी एलिमेंट को मुझे सिलेक्ट करना है लिस्ट से, तो ये सारी चीज़ तो हम लोग देख चुके हैं बाबा, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग इसके ऊपर हैशेस के ऊपर, ठीक है। अब हैशेस क्या बोलती है, की वैल्यू पेयर होते हैं, ठीक है। इंडिविजुअल वैल्यू को एक्सेस करने का तरीका आपको हमने पहले ही बताया था कि स्लैश के बाद में आप डॉलर लगाओ, जॉन पॉल का जो डेटा है वो आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो जॉन पॉल के ऊपर वैल्यू क्या है 45, लीजा के ऊपर वैल्यू क्या है 30 एंड कुमार के ऊपर वैल्यू क्या है 40। तो दिस इज द वे थ्रू विच यू आर एक्सेसिंग अ वेरिएबल। ना अभी किसी हैश को क्रिएट करना है, किसी हैश को क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं, ठीक है। या तो आप पर्टिकुलर इंडिविजुअल एलिमेंट्स की वैल्यू, ठीक है। फिर दूसरा तरीका क्या होता है, आप जो है एक पर्टिकुलर पेयर लिस्ट ले लो और फिर उसके फर्स्ट एलिमेंट को सेकंड के साथ में आप पेयर अप कर दो, ठीक है। तो उसका तरीका क्या हो जाता है, यहाँ पर देखते हैं हम लोग क्या तरीका है। यहाँ पर मैंने लिखा है परसेंटेज डेटा इज इक्वल्स टू जॉन पॉल 45, लीजा 30, कुमार 40, ठीक है। अगर आपको ढंग से समझना है तो आप सिंपल यहाँ पर एक ब्रैकेट से लगा लो, ग्रेटर देन इक्वल टू के बाद में ग्रेटर देन का सिंबल, सो दिस इज व्हाट इट इज व्हाट सिंबलिक मीनिंग, इस तरीके से लिखा है इस चीज, ठीक है। तो दिस इज हाउ वी आर टेकिंग द वेरिएबल्स, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। नाउ किसी हैश एलिमेंट के डेटा को एक्सेस करना है तो उसका तरीका क्या होता है उसको समझते हैं। तो किसी हैश एलिमेंट्स को हमें एक्सेस करना है तो उसका तरीका क्या बोलते हैं, यहाँ पर डेटा लिया, जॉन पॉल लिया, है ना। तो जॉन पॉल लिया मैंने, तो मैं क्या कर रही हूँ, की को एक्सेस कर रही हूँ यहाँ पर। तो की को एक्सेस करने पर क्या कर दिया, अब की के ऊपर जो वैल्यूज हैं वो रिजल्ट उसने बता दिया, ठीक है। यहाँ पर भी देखो ये चीज बोल रहा है, व्हेन एक्सेसिंग द इंडिविजुअल एलिमेंट्स फ्रॉम अ हैश यू मस्ट प्रीफिक्स द वेरिएबल विद डॉलर साइन, वो तो हम हमेशा ही करते हैं। देन अपेंड द की विद इन द कर्ली ब्रेसेस आफ्टर द नेम ऑफ द वेरिएबल, ठीक है। तो जो भी यहाँ पर की आ रही है उसके ऊपर स्टोर जो वेरिएबल की वैल्यू रहेगी उसको हम लोग यहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। अब जैसे हम लोगों ने स्लाइस के कंसेप्ट कहीं और पढ़े थे, वैसे के वैसे ही स्लाइस के कंसेप्ट हम लोग को यहाँ पर भी देखने पड़ेंगे। स्लाइसेस क्या बोलती हैं, आप डेटा को स्लाइस करो और जो वैल्यू चाहिए उसको आप उठाओ, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, माइनस जॉन पॉल और माइनस लीजा, तो इन दोनों के ऊपर क्या वैल्यू आ रही है, तो यहाँ पर आ रही है 45, यहाँ पर आ रही है 30, तो वैल्यूज आ जाएंगी इसके अंदर। अब यहाँ पर अब शुरू होती है कुछ इंपॉर्टेंट चीज़, ठीक है। एक्सट्रैक्टिंग कीज
एंड वैल्यूज क्या करना होता है, you can get the list of all the keys from a hash by using the keys function, ठीक है। then which has the following syntax, keys percentage hash, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, की परसेंटेज यहाँ पे लगाया डेटा, तो डेटा के अंदर क्या चीज़ चाहिए, मुझे सारी कीज चाहिए, तो जॉन पॉल, लीजा और कुमार, ये रिजल्ट हमारा यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। ये हम कई बार देख चुके हैं, इसलिए हम यहाँ पर दोबारा दोबारा नहीं करेंगे। अब मुझे कीज के बजाय क्या चाहिए, वैल्यूज चाहिए, तो वैल्यूज क्या हो गई, वैल्यू का इसके आगे लगा दिया हैश, तो वैल्यू क्या है, उन चारों तीनों की जो एज है, वहाँ पर एज क्या है 45, 30 और 40, तो वो वाला डेटा यहाँ पर आ जाएगा 45, 30 और 40, ठीक है। अब इसके अंदर यहाँ पर 45, 30 और 40, ठीक है, तो यहाँ पर वो वाला डेटा आ जाएगा। तो अभी यहाँ पर क्या किया हुआ है, जीरो पोजीशन पर कौन सा है, दिस विल प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट 30, 45 और 40, क्यों बाबा 30, 45 और 40 क्यों आएगा, समझने वाली बात ये है, ठीक है। तो हम देखते हैं ये क्या कह रहा है, कुछ प्रोग्राम में गड़बड़ तो नहीं लग रही, क्योंकि मेरी समझ से तो 45, 30 और 40 आना चाहिए रिजल्ट, 45, 40 और 30। हाँ, तो यहाँ पर ये जो डेटा आया है बाबा, ये तो एक इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर आया है, ये मुझे समझो, लेकिन यहाँ पर ये रिजल्ट तो किसी भी ऑर्डर में नहीं आया। ओके ओके ओके, डिड यू गॉट द पॉइंट, यू डिडंट गेट द पॉइंट, आई टेल यू व्हाट, क्या होता है बेटा, जो भी हमारे की वैल्यू पेयर्स होते हैं, इनका कोई इंडेक्सिंग पोजीशन फिक्स नहीं होता है, ठीक है, इनका इंडेक्सिंग पोजीशन कभी फिक्स नहीं होता है, इसीलिए एट अ रैंडम जो डेटा उठ करके आ रहा है वो उसकी वैल्यूज को एज इट इज ले लेगा, ठीक है। अभी अगर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल करूँ, तो जो इस वैल्यू को पहले एक्सेस कर लेगा उसको यहाँ पर दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फिर वैल्यू चेंज होगी, यहाँ पर देखोगे फिर डेटा चेंज होगा, यहाँ पर देखोगे फिर डेटा चेंज हो जाएगा। सो इस तीन के जितने भी फैक्टोरियल 3 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, वो फैक्टोरियल 3 कॉम्बिनेशंस बना करके हमें यहाँ पर रिजल्ट दे देगा, ठीक है। तो दिस इज व्हाट, बिकॉज हैशेस के अंदर क्या होता है ना, कोई इंडेक्सिंग पोजीशन नहीं होती है, जैसे आपकी नॉर्मल एरेज के अंदर होती है कि 0 से लेकर के होगा और लास्ट की वैल्यू का एक्सेस करना है तो -1 का तरीका होगा, इसमें इंडेक्सिंग पोजीशन नहीं होती। तो जब इंडेक्सिंग पोजीशन है ही, तो कौन सा डेटा किस वे में एक्सेस हो रहा है ये मुझे कभी नहीं पता होता, ठीक है। तो इसके लिए ये वाला इशू आया था, ठीक है। वो एरर नहीं है, वो एक हमारे समझने के लिए इशू है, ठीक है। देन फिर क्या हो गया, एक्सट्रैक्टिंग कीज एंड स्लाइसिंग, तो हम लोगों ने देख लिया था, वैल्यू की हैश कर लेती। अब मुझे ये चेक करना है कोई पर्टिकुलर की वैल्यू पेयर उसके अंदर है या नहीं है, ठीक है। तो हम इसमें क्या करते हैं, पाइथन के अंदर हम सीधे सीधे इसकी कंडीशन पे उठाकर डेटा को चेक कर देते हैं, ठीक है। चेक इफ इट एग्जिस्ट और नॉट, चेक इफ इट इज नॉट एग्जिस्टिंग इन द सिस्टम, सो दैट काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच वी डू देयर। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, परसेंटेज डेटा इज इक्वल्स टू जॉन पॉल 45, लीजा 30 एंड कुमार 40, ठीक है। मुझे क्या करना है, लीजा का डेटा इसके अंदर एक्सेस होता है या नहीं होता है, ठीक है। अगर नहीं होता है तो आ जाएगा, अगर होगा तो नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर एक लाइव डेमो देखते हैं और जरा इसके अंदर पूरा बातें करके देखते हैं, तो इससे हमें वी कम टू नो दैट व्हाटएवर वी आर ट्राइंग इन टेस्टिंग द थिंग्स, it is having the same significant meaning or not, okay। so let's see here that we talk about the Lisa, तो ये तो एकदम सिंपल सी चीज़ है, तो यहाँ पर लीजा को प्रिंट होना चाहिए, तो लीजा इज 30 ईयर्स ओल्ड। नाउ लेट अस सपोज अगर मैं यहाँ पर किसी स्टूडेंट का नाम सर्च करूँ, सैयद साहब का नाम सर्च करते हैं, ठीक है। तो सैयद साहब का नाम यहाँ पे सर्च करते हैं, तो सैयद साहब का नाम है क्या यहाँ पर, आई डोंट नो हु सैयद साहब है, राइट। सो दिस इज हाउ दिस डेटा इज बीइंग मूव्ड आउट ऑफ दिस प्लेस, ओके गाइस। ओके, तो यहाँ पर हम किसको चेक कर रहे थे, लीजा, तो लीजा यहाँ पर अवेलेबल है, तो लीजा का एज पता चल जाएगा, अगर लीजा नहीं है तो उसका डेटा हमें कभी पता चलेगा ही नहीं, ठीक है, वी डू नॉट नो। नाउ गेटिंग द हैश साइज, किसी हैश का साइज क्या है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, उसकी कीज का साइज और इसका साइज, सीधा सीधा इसका डेमो चला के देखते हैं। और फिर इसके बाद में हैशिंग है, तो इसके अंदर दो इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आते हैं, आप उसके अंदर पुश या पॉप जरूर करते हो डेटा को, है ना। तो और किसी पोजीशन, पर्टिकुलर पोजीशन से डेटा को हटाना है तो वो हटाते हैं, इसके अंदर आगे आने वाली चीजें ये होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, सो परसेंटेज डेटा जॉन पॉल के अंदर क्या है 45, लीजा के अंदर है 30 और कुमार के अंदर है 40, ठीक है। तो मुझे कीज का साइज देखना है और वैल्यूज का साइज देखना है, दोनों बता दे रहे हैं कि मेरे पास में 3 3 साइज दोनों का होना चाहिए। सो द हैश साइज इज 3, द हैश साइज इज 3, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाला मेरे पास में रिजल्ट आ गया, तो साइज के थ्रू मैं साइज चेक कर सकती हूँ। अब इम्पोर्टेंट फीचर क्या होता है, ऐड और रिमूव की डेटा, ठीक है। तो यहाँ पर ऐड और रिमूव डेटा देखते हैं कैसे होता है, इसके अंदर हर एक वैल्यू को एक्सेस करने का क्या तरीका रहेगा।
तो यहाँ पर ध्यान देखते हैं, जॉन पॉल 45, लीजा 30 और कुमार 40। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, एट द रेट कीज, कीज से मुझे क्या चाहिए, डेटा को एक्सेस करना है। क्या चेक करना है, ये तो आ गया मेरे पास में साइज, ठीक है, किसी एरे का। देन डेटा के अंदर अली और हाँ, अब मैं यहाँ पर क्या कर रही हूँ, ये तो मेरे पास में ऑलरेडी एक डेटा है जिसका मैंने साइज ले लिया 3। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस लिस्ट के अंदर कुछ ऐड करना है, डेटा क्या ऐड करना है, एक नाम ऐड किया मैंने अली, उसका वैल्यू क्या है यहाँ पे 50। ठीक है, और दूसरा क्या है, डिलीट कोई डेटा करना है यहाँ से, तो अली को कर दो। अली के बजाय अगर हम जो है लीजा को रिमूव कर देते हैं तो होगा क्या, है ना, तो लीजा यहाँ पे रिमूव होनी चाहिए। लेट अस सी। ओके, सो हैश साइज इज 3, राइट, नो डाउट इन दैट। फिर क्या हुआ, हैश साइज इज 4 हो गया। देन फिर से क्या हो गया, हैश साइज यहाँ पर 3 हो गया। लेकिन हम लोग को जो है यहाँ पर, यहाँ पर जो है हम लोग डेटा को चेक कर रहे थे, तो हमने किसको डिलीट कर दिया था यहाँ से, अली को। तो अली यहाँ से इस समय रिमूव हो गया है, बट शायद उसकी जो की वैल्यू पेयर के अंदर की कोई एक डेटा है वो बचा हुआ है, इसलिए यहाँ पर एग्जीक्यूशन के टाइम पर जो है इसका साइज जो है ये अभी भी 4 ही दिखा रहा है। ठीक है, ये समझने की बात है यहाँ पर। ओके, तो इसी के साथ में क्या होता है, हमारे हैशेस जो है यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में जो हम शुरू करने वाले हैं वो नेक्स्ट लेक्चर में क्या होगा, इफ एल्स लूप ऑपरेटर डेट एंड टाइम। ठीक है, ये कंप्लीट करेंगे इसके अंदर सारी सारी चीजें। ठीक है, so okay guys, this is all for today's session, and then we'll see it later that how the things are being going. Okay, thank you so much for this particular session. Bye bye.